Hello and welcome to the Agri Toppers Academy YouTube channel. Starting today, we will be covering 10 pages daily from the latest 12th edition Nimraj Sunda book. Additionally, you will have the opportunity to participate in a high quality quiz based on same 10 pages. To join the quiz, click on the link provided in the description to join our General Agriculture Telegram group. And don't forget to subscribe to our channel to stay updated and never miss a video. So this is the second lecture of Nimraj Sunda book. Here we will discuss about general agriculture. Some numerical data are given here. Now let's start our lecture. Firstly, we will see some numerical data of area. The first is geographical area of India. It is about 328.74 million hectare. Total reporting area of India is 306 million hectare. Total degraded land of India is 187 million hectare. Gross cropped area of India is 197.30 million hectare. Gross irrigated area of India is 102.67 million hectare. Net irrigated area of India is 71.55 million hectare. Net cropped area of India is 139.30 million hectare. Crop intensity of India is 141.60%. ये जो न्यूमेरिकल डाटा गिवन है यहाँ पर उसको आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा और आप एक पेज में ये सभी डाटा को अपने रूम में भी लगा सकते हैं ताकि आप बार बार इस चीज़ का रिवीजन करते रहेंगे. सो आगे स्टार्ट करते हैं. Major source of irrigation in India is tube well, which is about 48.51%. Second major source of irrigation is canals, which is about 22.96%. Forest area of India is 21.71% according to the data of 21 to 22. Optimum forest area required is around 33% of geographical area. State which is having the highest geographical area in India. इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका geographical area सबसे ज़्यादा है? तो उस स्टेट का नाम है राजस्थान, which is about 10.41%. स्टेट which is second in geographical area, सेकेंड नंबर पे कौन सा स्टेट आता है? एमपी, मध्य प्रदेश. देन स्टेट which is having highest forest area और इसका आंसर भी है मध्य प्रदेश, एमपी. स्टेट विच इज फर्स्ट इन पल्सेस प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा पल्सेस का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश. स्टेट विच इज फर्स्ट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है यूपी के अंदर. स्टेट विच इज फर्स्ट इन टोटल कोर्स सीरियल प्रोडक्शन, टोटल कोर्स सीरियल प्रोडक्शन कौन से स्टेट में हाईएस्ट होता है? राजस्थान में. स्टेट विच इज सेकंड इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एमपी. स्टेट विच इज फर्स्ट इन वीट प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन पे फर्स्ट नंबर पे आता है यूपी एंड सेकंड नंबर पे आता है पंजाब. स्टेट विच इज फर्स्ट इन सोयाबीन प्रोडक्शन, सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है एमपी के अंदर. स्टेट विच इज फर्स्ट इन रेपसीड एंड मस्टर्ड प्रोडक्शन, रेपसीड और मस्टर्ड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है और इसी का एक रिसर्च स्टेशन भी है भरतपुर के अंदर. वाटर वेपर इन द एटमोसफियर इज कंस्टिट्यूट, वाटर वेपर एटमोसफियर के अंदर कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होती है? सो इट इज अराउंड 0.001%. एनुअल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन इज 1000 mm. Average annual rainfall of India is 1194 mm. General rainfall volume is 400 million hectare meter. Maximum area under irrigation is Ganga basin. Maximum area under drip irrigation in Maharashtra. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा drip irrigation किया जाता है. Highest fertilizer consumption rate which includes both states and union territories and इसका आंसर है पौंडीचेरी which is around 1091 kg per hectare. Highest fertilizer consumption rate कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजप्शन किया जाता है? तो इसका आंसर है पंजाब, 212 kg per hectare. Total fertilizer consumption is maximum in UP.
सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजप्शन होता है यूपी के अंदर। एवरेज फर्टिलाइजर कंजप्शन इन इंडिया इज अराउंड 137.15 kg per hectare according to the data of 2021. State having maximum area under irrigation is, इरिगेशन के अंडर में सबसे ज़्यादा एरिया कौन से स्टेट ने कवर किया है? इसका आंसर है पंजाब, विच इज़ अराउंड 92.7% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन इंडिया इज अराउंड 315.72 मिलियन टन। इसके अंदर सीरियल्स एंड पल्सेस दोनों इंक्लूडेड हैं। सीरियल ग्रेन्स प्रोडक्शन इन इंडिया इट इज़ अराउंड 288 मिलियन टन। Total pulses production in India is 27.69 million ton. Among pulses, highest production. कौन सी pulses का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है? इसका आंसर है ग्राम, which is around 13.75 million ton, and it is followed by अरहर। फर्स्ट नंबर पे आती है ग्राम एंड सेकेंड नंबर पे आता है अरहर, which is also called as pigeon pea, and pigeon pea का प्रोडक्शन होता है 4.34 million ton. Oilseed production in India is around 37.70 million ton. Among the oilseeds, which crop is highest in production? Oilseeds में सबसे ज़्यादा हम कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं? तो इसका आंसर है सोयाबीन। सो याद रखना, पल्सेस में आंसर आता है ग्राम एंड ऑयलसीड का पूछेंगे तो आंसर होगा सोयाबीन। एंड सोयाबीन के बाद सेकेंड नंबर पे आता है मस्टर्ड, विच इज़ अराउंड 11.75 मिलियन टन। Rice production in India is around 130.29 million ton. Wheat production in India is 106.84 million ton. Sugarcane production in India is around 431.81 million ton. Total milk production in India is 209.96 million ton. Cotton production in India is around 31.20 million bales. मिल्क अवेलेबिलिटी पर कैपिटा पर डे इज, पर डे में कितना मिल्क अवेलेबल होता है? इट इज अराउंड 427 ग्राम। टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया के अंदर टोटल फ्रूट प्रोडक्शन कितना होता है? इट इज अराउंड 107.10 मिलियन टन। वेजिटेबल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया के अंदर वेजिटेबल का प्रोडक्शन कितना होता है? तो इट इज अराउंड 204.61 मिलियन टन। पोटैटो प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2021 to 22, 2021 में पोटैटो का प्रोडक्शन कितना हुआ था? तो इसका आंसर है 53.58 मिलियन टन। एंड पोटैटो के बाद सेकेंड नंबर पे अनियन आता है एंड थर्ड नंबर पे टोमेटो। इसके बाद नेक्स्ट है टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। हॉर्टिकल्चर का टोटल प्रोडक्शन कितना होता है? 341.63 मिलियन टन। अमंग फ्रूट्स हाईएस्ट प्रोडक्शन फ्रॉम, फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से फ्रूट का होता है? इसका आंसर है बनाना। बनाना के बाद सेकेंड नंबर पे आता है मैंगो, जिसका हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। एरिया अंडर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन में कितना एरिया कवर किया है? इट इज़ अराउंड 11.30 मिलियन हेक्टेयर। मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर इज, वाटर में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किसका होता है? आर्सेनिक। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन लोअर स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में सबसे ज़्यादा ओजोन का कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन ईयर 1980, इन 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इनेक्ट हुआ था। The test has self-purification capacity of water body is BOD test. Gas responsible for acid rain is, कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पॉल्यूटेंट फ्री ऑल्टरनेटिव टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में हम पॉल्यूटेंट फ्री ऑल्टरनेटिव पेट्रोल में क्या यूज़ करते हैं? इसका आंसर है प्रोपेन। हम पेट्रोल के अंदर प्रोपेन ऐड करते हैं एज एन अल्टरनेटिव, जिससे पॉल्यूटेंट कम होता है। द गैस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी,
और भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984, ईयर भी हमें याद रखना है। तो ये ट्रेजेडी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। MIC वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड। कौन सा इंसेक्टिसाइड बनता है इस मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से? कार्बारिल। ऑथर ऑफ फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग, जो कि 1962 में आई थी, इसके ऑथर का नाम है रशेल कार्सन। लार्जेस्ट ओशियन इज पैसिफिक ओशियन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। RBI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? RBI का एस्टेब्लिशमेंट कौन सी ईयर में हुआ है? 1935 में। प्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ चेन, प्रोटीन कौन सी चेन से मिलकर बनते हैं? तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स की चेन से मिलकर बनते हैं। ओजोन डिप्लीशन इज मेनली ड्यू टू, ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से हो रहा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CFC इज डिस्ट्रॉयड अबाउट 1 lakh molecules of ozone. गैस फिल्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर इज, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस फिल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP, एग्रीकल्चर अपनी GDP में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है? सो इट इज अराउंड 19.9%। प्लाउ विच इज यूज टू टर्न ओवर द सॉइल, सॉइल को टर्न ओवर करने में कौन सा प्लाउ यूज होता है? तो इसका आंसर है MB प्लाउ और मोल्ड बोल्ड प्लाउ। कार्बोहाइड्रेट विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है? इसका नाम है ग्लाइकोजन। द पेस्टिसाइड कंजप्शन इज मैक्सिमम इन, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का कंजप्शन होता है आंध्र प्रदेश में। प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। टोटल KVK इन इंडिया अप टू मार्च 2022, टोटल KVK कितने हैं इंडिया के अंदर मार्च 22 से पहले तक? सो इट इज अराउंड 731। हाईएस्ट KVK इन द स्टेट इज, सबसे ज्यादा KVK कौन से स्टेट में है? UP, और इसका वैल्यू है 89 KVK प्रेजेंट है UP के अंदर। टोटल KVK इन राजस्थान स्टेट इज, राजस्थान स्टेट के अंदर 47 KVK है। प्रेजेंट DG ऑफ ICAR डॉक्टर हिमांशु पाठक। रिसेंटली बेन्ड पेस्टिसाइड इज, कौन कौन सी पेस्टिसाइड्स हैं जो कि रिसेंटली बेन्ड कर दी गई हैं? सो इसका आंसर है एंडोसल्फेन विच इज बेन्ड इन 2013, बिनोमिल, कार्बारिल, डायएजिनोन, फेंथियोन, मिथाइल पैरेथियोन, और ये सभी बेन्ड हुई थी 2018 में। टिल 31 दिसंबर 2020 विच इंसेक्टिसाइड वुड बी बेन्ड, कौन सी इंसेक्टिसाइड है जो कि दिसंबर 31, 2020 से पहले ही बैंड हो चुकी है? फोरेट, फोस्फोमिडोन, एलेक्लोर, डाइक्लोरोवोस, ट्राइक्लोरोफोन एंड ट्राइएजोफोस। On which crop first All India Coordinated Research Project AICRP was started? इसका आंसर है मेज। इन 1975 मेज के ऊपर AICRP प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर इज, फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर किसके लिए बनाया गया था? तो इसका नाम है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट के लिए फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर बनाया गया था जूनागढ़, गुजरात में। द रीजन इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड, ओशियन एंड एटमोस्फियर इज, इसका आंसर है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हम किसको बोलते हैं? एटमोस्फियर, लिथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर के कॉम्बिनेशन को। तो जब लैंड, ओशियन एंड एटमोस्फियर कंबाइन होते हैं तो उस रीजन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। The plants which produce food themselves through photosynthesis, ऐसे प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक, और उन प्लांट्स को हम बोलते हैं फोटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स।
Sui generis used in get proposals in a Latin word which means a system of its own. India won neem patent in March 2005 from J.R. Grace Company of America since 1999. इंडिया को नीम के लिए पेटेंट मिला था मार्च 2005 के अंदर. In North India, sometimes rain takes place in winter, which is due to नॉर्थ इंडिया के अंदर विंटर्स में भी कभी कभी बारिश देखने को मिलती है. इसका रीजन है वेस्टर्न डिप्रेशन. इन टोटल एग्रीकल्चरल क्रेडिट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंक इज हाईएस्ट which is around 74%, which is followed by cooperative banks, it is around 17%, and then rural bank which is around 9%. Agriculture came into existence in 7500 BC when cultivation of wheat and barley first started. सबसे पहले एग्रीकल्चर में व्हीट और बार्ली को प्रोडक्शन स्टार्ट किया था और ये अराउंड 7500 BC के टाइम पे हुआ था. मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस MSP of various crops are recommended by Commission on Agriculture Cost and Prices. It is also called as CACP. At present 22 mandated crops which includes 14 Kharif and 6 Rabi crops and 2 commercial crops like jute and copra. They are covered under MSP minimum support prices while sugarcane is covered under fair and remunerative prices FRP. Accumulation of nutrients in a lake or a pond due to human intervention or natural process is called as eutrophication. जब भी लेक या फिर पॉन्ड में ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से वाटर बॉडीज की डेथ हो जाती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन. इंडिया इज मीटिंग 85% इन इट्स यूरिया रिक्वायरमेंट थ्रू इंडिजीनियस प्रोडक्शन बट डिपेंड्स हेविली ऑन इंपोर्ट्स फॉर इट्स फॉस्फेटिक एंड पोटेश फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स. इंडिया में 85% यूरिया की जो डिमांड है वो इंडिजीनियस प्रोडक्शन से ही मिल रही है, लेकिन फॉस्फेटिक और पोटेश फर्टिलाइजर के लिए इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है. इन इंडिया यूरिया इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स एट अ statutory notified MRP while phosphatic and potassic fertilizers are concerned as government is implementing nutrient based subsidy NBS scheme. Under this scheme subsidy is provided on each grade of subsidized potassium and phosphatic fertilizer depending upon its nutrient content. यहाँ पर कुछ ICAR इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट दी गई है और ये कहाँ पर प्रेजेंट है ये भी बताया गया है. तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट है IRI जो कि सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है. इसे हम बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इसका पहले नाम हुआ करता था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बिहार से न्यू दिल्ली में शिफ्ट हुआ था. नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये ईटानगर यूपी में प्रेजेंट है. नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में प्रेजेंट है ये. नेक्स्ट है CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन. ये मुंबई में प्रेजेंट है महाराष्ट्र के अंदर. नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो कि इलाहाबाद यूपी के अंदर प्रेजेंट है. इसके बाद यहाँ पर कुछ और इंस्टीट्यूट दिए हैं जैसे कि CARI सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार में प्रेजेंट है. ये एक यूनियन टेरिटरी है. इसके बाद आता है CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर राजस्थान में प्रेजेंट है. इसके बाद है CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये बीकानेर राजस्थान में प्रेजेंट है. इसके बाद है CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग
जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है CIPHET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि लुधियाना पंजाब में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज क्रीडा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये हैदराबाद में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स, ये वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कुटक उड़ीसा में प्रेजेंट है। इसे हम नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में प्रेजेंट है। इसके बाद है सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में प्रेजेंट है। इसके बाद है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। एंड इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पूसा बिहार में प्रेजेंट है। इसके बाद है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, ये हापुड़ यूपी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कानपुर यूपी में प्रेजेंट है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल एमपी में प्रेजेंट है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में प्रेजेंट है। इसके बाद आता है इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में प्रेजेंट है। इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी यूपी। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड अलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी कलकत्ता वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। इसके बाद आता है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में प्रेजेंट है। याद रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है एंड शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI कोयम्बटूर में है। देन विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संसाधन, ये अल्मोड़ा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एनिमल साइंसेस एंड फिशरीज के रिसर्च इंस्टीट्यूट दिए हैं, जैसे कि CARI, यहाँ इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ईटानगर यूपी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, ये कोचीन केरला में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, ये मथुरा यूपी में प्रेजेंट है। देन सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अविका नगर टोंक राजस्थान में प्रेजेंट है। देन आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ये बेंगलोर कर्नाटका में प्रेजेंट है। देन नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद में प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पर कुछ नेशनल ब्यूरोज दिए हैं, जैसे कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, काफ़ी फेमस ब्यूरो है, ये न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। इसके बाद आता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये नागपुर महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। इसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि करनाल हरियाणा में प्रेजेंट है। देन नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ यूपी में प्रेजेंट है। देन नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये यूपी में प्रेजेंट है। एंड लास्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज, ये बेंगलोर में प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट है IRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, ये मैक्सिको में प्रेजेंट है। जैसा कि हम जानते हैं मेज का ओरिजिन मैक्सिको से हुआ है, इसीलिए हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट भी मैक्सिको में प्रेजेंट है। देन इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरियाज, ये साइरिया में प्रेजेंट है। देन इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद में प्रेजेंट है। देन इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीजेस, ये केनिया में प्रेजेंट है। देन इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये इटली में प्रेजेंट है।
देन इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये रोम इटली में प्रेजेंट है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो कि श्रीलंका में प्रेजेंट है। देन एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये तैवान में प्रेजेंट है। देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर नाइजीरिया में प्रेजेंट है। देन इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये कोलंबिया में प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पर कुछ अदर इंस्टीट्यूट्स दिए हैं जैसे कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये हैदराबाद में प्रेजेंट है। देन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में प्रेजेंट है। देन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस, ये जबलपुर में प्रेजेंट है। देन नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी, ये भुवनेश्वर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च, पटना बिहार में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, हैदराबाद तेलंगाना में प्रेजेंट है। इसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च बोलते हैं। देन प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च, ये पूसा में प्रेजेंट है। इसे हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च जो कि लुधियाना पंजाब में शिफ्ट हुआ है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च जो कि करनाल हरियाणा में प्रेजेंट है और इसे हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ली रिसर्च। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये यूपी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट इज डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, ये पुणे महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर, ये न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये स्टार्ट हुआ था 2002 में। देन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये चेन्नई 2003 में स्टार्ट हुआ था। देन नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस म्यूजियम, ये ICAR के अंडर में है एंड न्यू दिल्ली में ये है, 2004 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट इज डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, ये भरतपुर के अंदर प्रेजेंट है। लास्ट टाइम पहले भी हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा मस्टर्ड एंड रेपसीड का प्रोडक्शन भरतपुर राजस्थान में होता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड, ये अक्टूबर 1958 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट इज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 12 जुलाई 1982 में। ये डेटास हमने कल भी रीड किए थे। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा, ये न्यू दिल्ली में है। गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये 1947 में एस्टेब्लिश हुआ था। देन 1995 में ये WTO से रिप्लेस हो गया था। इसके बाद है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये जयपुर राजस्थान में प्रेजेंट है। देन सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये फरीदाबाद हरियाणा में प्रेजेंट है। इसके बाद आता है नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हैदराबाद में प्रेजेंट है। देन डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये फरीदाबाद हरियाणा में प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ICAR अवार्ड्स दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट अवार्ड है हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड। ये अवार्ड पब्लिश हुआ था रिसर्च इन क्रॉप साइंसेस में। देन पंजाब राव देशमुख वुमेन अवार्ड, ये वुमेन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए है। देन जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, ये अवार्ड होता है बेस्ट वर्क इन PhD इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेस के लिए। देन
जगजीवन राम किशन अवार्ड, ये अवार्ड होता है टू इनोवेटिव फार्मर्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेस के लिए। देन चौधरी चरण सिंह अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस जर्नलिज्म इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस दिए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि कुरुक्षेत्र, इसे पब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एंड ये प्रेजेंट है न्यू दिल्ली में। देन करंट साइंस एसोसिएशन एंड इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस ने इसे पब्लिश किया था बेंगलोर के अंदर। एंड थर्ड है साइंस रिपोर्टर, CSIR ने पब्लिश किया था न्यू दिल्ली में। इन लास्ट यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। फर्स्ट है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इसे हम व्हीट ब्रीडर बोलते हैं और इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लानिंग कमीशन के एक्स मेंबर रहे हुए हैं। इसके अलावा इनको FAO के द्वारा वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड मिला था 1987 में। इसके अलावा इनको मिलेनियम प्राइज मिला था प्राइम मिनिस्टर AB वाजपेयी के द्वारा, जो कि 88 नेशनल साइंस कांग्रेस में मिला था। इन्हें हम नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी थी व्हीट रिवॉल्यूशन के ऊपर। इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज अवार्ड मिला था, जो कि 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट न्यू दिल्ली अक्टूबर 2018 में दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आते हैं डॉक्टर एनी बॉर्लॉग। इन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड बोलते हैं एंड इन्हें हम अमेरिकन व्हीट साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। इन्हें नोबेल पीस प्राइज अवार्ड दिया गया था 1970 में। देन थर्ड साइंटिस्ट है वर्गीस कुरियन, इन्हें हम फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं एंड ये NDDB के एक्स चेयरमैन रहे हैं आनंद गुजरात में। इसके अलावा इन्होंने ऑपरेशन फ्लड नाम की स्कीम स्टार्ट की थी 1970 से 1996 तक। इसके अलावा इन्हें मक्सेस यास अवार्ड मिला था 1963 में और इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड भी दिया गया था 1989 में। इसके बाद नेक्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं SK वशल, इन्हें हम मेज ब्रीडर बोलते हैं। इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड मिला गया था 2000 के अंदर। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं डॉक्टर KL चड्डा, इन्हें हम पोमोलॉजिस्ट बोलते हैं एंड इन्होंने फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया भी बोला जाता है। फादर ऑफ गोल्ड रिवॉल्यूशन इन इंडिया का मतलब है कि इन्होंने हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट किया था। देन नेक्स्ट है डॉक्टर RS परोड़ा, इन्हें हम फॉरेस्ट ब्रीडर बोलते हैं। इसके अलावा ये ICR के एक्स DG भी रहे हैं। देन नेक्स्ट है अमृता पटेल, ये NDDB आनंद में चेयरपर्सन रही हैं। नेक्स्ट है संजय राजा राम, इन्हें हम इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर बोलते हैं और इन्हें चाइनाज फ्रेंडशिप मेडल मिला था 2001 में। एंड लास्ट साइंटिस्ट है डॉक्टर JS खुश, इन्हें हम राइस ब्रीडर बोलते हैं एंड इन्हें वुल्फ प्राइज अवार्ड मिला था 2000 में। इन्होंने राइस के ऊपर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पे कंट्रीब्यूशन दिया था। So this is all about general agriculture. In the next lecture we will learn about agronomy. And वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम के थ्रू आप क्विज प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं, जो कि सेम इन 10 पेजेस से रिलेटेड है। इन्हीं पेजेस से वो क्वेश्चंस लिए गए हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। So thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share.